गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बेटा हमने एक एक्सरसाइज आपको दीदी करने के लिए 7.1, ठीक है। उसके बाद हम जो है 7.2 की बात कर रहे हैं। उसके लिए हम एक नया फार्मूला ड्राइव कर रहे हैं जो हम कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करने में हमारी हेल्प करेगा। जैसे हम सपोज करिए कि हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं, तो सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का जो हमारे पास फार्मूला है दैट इज PRT अपॉन 100। ठीक है, इसमें P क्या है, प्रिंसिपल है, R आपकी रेट है, टाइम T4 टाइम अपॉन 100। ठीक है, वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर। इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर, that will be PR upon C की जगह we have to put 1 only, so PR upon 100. After 1 year, so what will be the amount? The amount is equal to, it will be equal to P plus interest. Interest is how much? PR upon 100. If we take common P, that becomes 1 plus R upon 100. This is the amount after 1 year. ठीक है, now we are going to calculate the interest for second year. So if we take the, we have to find out the interest for second year. Now our principal is P1 plus 1 plus R upon 100. P1 plus R upon 100. This is our principal. ठीक है, this is the now our principal PR. R rate we are taking. ठीक है, टाइम इज 1 year. We are calculating the interest only for 1 year upon 100. This is the interest for second year. After second year, what will be the amount? Amount will be principal plus interest. So principal is how much? Principal was our after 1 year, that was P plus 1 plus R upon 100. Now our interest is how much? PR 1 plus R upon 100 divided by 100. Now you can take common P, ठीक है, and 1 plus R upon 100. This we are taking common. How much you will get? Here if we take common, here we will get only 1. P we have taken common, it becomes R upon 100. It means after 2 years, our amount will be P1 plus R upon 100 to the power 2. ठीक है, ये हमने चेक किया कि आफ्टर 1 year the our amount will be P1 plus R upon 100. After 2 years our amount is P1 plus R upon 100 to the power 2. In the same way, if we calculate in the third year, the amount will be P1 plus R upon 100 to the power 3 and so on. इसी तरीके से हमने चेक किया, फिर पावर इनकी होती चली जा रही है, पावर 2 है, फिर 3 है, 4 years का if we calculate that becomes 4, or if we calculate for n years then it becomes n. So this is the formula. अगर हम अलग अलग कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है,
अब हम एक ही फार्मूला डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, ठीक है, ये वाला फार्मूला जो अभी हमने ड्राइव किया है, जब भी हमें कभी कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है। This is the formula for finding the compound interest. Amount is equal to P1 plus R upon 100. R means R rate to the power n. R को कैपिटल R लिखा था हमने, मैंने अब स्मॉल r लिख दिया है, कैपिटल R लिख लो, इट इज डिपेंड ऑन यू. दिस इज द फॉर्मूला. इट विल कैलकुलेट यू अमाउंट आफ्टर whatever time you need. Okay, there is no need to find out the after first year, after second year, after third year, after fourth year. So directly this formula can calculate your amount, how much time you need to find. Just we start the exercise 7.2. The first question is calculate the amount and compound interest on. यहाँ principal they have given you 15,000 and time is 2 years. यानी कि time को we are indicating by n. N is equal to 2 years and rate is 10%. This is the value of PRT. Now you can calculate amount and interest whatever you need. The formula will tell you the amount. A equal to P. P means 15,000. 1 plus R 10 upon 100 to the power 2. Because the time they have given you 2 years. 0 से we can cancel 0. 15,000 10 11 upon 10 into 11 upon 10 because the power is 2. So you can cancel 2 zeros. Now you can multiply 150 into 11 into 11, 121. If you multiply 121 by 15, it becomes 18150 and it is 18,150. ठीक है, if we invest some amount 15,000 for 2 years, it will become 18,150 for 2 years. ठीक है, so how much interest we got? So A minus C. Amount में से we can minus principal. It will become 3,150. This is the interest. Amount is 18,150. Principal is 15,000. Okay. So this is the interest. So mostly question you have to use this formula. Okay, for finding the amount. Mostly question directly you have to use. They will give you rate. No? They have given the rate, so you have to put here the value of n. This is the duration for how much you are giving the loan. Yeah, you are investing the amount. P for principal. You have to calculate carefully. And after simplifying, you just multiply. If some terms cancelling, just cancel it. ठीक है, जो remaining terms है, you just multiply with them. This is the first part of first question. ठीक है. The same way, the 15,600 to 1,56,250 for 1.5 years at 8% per annum compounded half yearly. अब बस ये आपको ध्यान रखना होगा, compound sometimes the question may be different.
दे आर सेइंग द कंपाउंडेड हाफ ईयरली। कहीं कहीं क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट हाफ ईयरली लगाया जाता है, कहीं हाफ क्वार्टरली लगाया जाता है। कंपाउंडेड हाफ ईयरली का मतलब है कि 6 मंथ के बाद जो है आपका अमाउंट के अंदर जो प्रिंसिपल है उसके अंदर इंटरेस्ट ऐड हो जाएगा, अमाउंट चेंज हो जाएगा। ठीक है, उसे हम कहते हैं कंपाउंडेड हाफ ईयरली। ऐसा भी हो सकता है कि कहीं पर क्वार्टरली कंपाउंडेड होता है, यानी कि 3-3 महीने के बाद, 3 महीने के बाद जो आपका इंटरेस्ट बना वो उसमें आपके प्रिंसिपल में ऐड हो गया। ऐड होने के बाद फिर अमाउंट चेंज हो जाएगा। उस स्थिति में आप क्या करेंगे, इंटरेस्ट अगर हाफ ईयरली है तो रेट को जो है हम हाफ कर देते हैं और टाइम को डबल कर देते हैं। ठीक है, क्वार्टरली है तो रेट को हम 1/4 कर देते हैं, टाइम को 4 टाइम्स कर देते हैं। ठीक है, एन और पी की वैल्यू हम चेंज कर लेंगे, बस ये ध्यान रखना। देखो बेटा, सेकंड पार्ट में प्रिंसिपल है आपका 1,56,250 फॉर 1 टाइम जो दिया हुआ है इन्होंने 1/1/2 ईयर, और रेट जो दी हुई है वो 8% दी हुई है। ठीक है, मैंने इसको कैपिटल में लिख दिया है। कैपिटल में क्यों लिख दिया है, ताकि आपको ये डिफरेंस पता चल जाए, क्योंकि हमें प्रिंसिपल तो यही लेना है। क्योंकि कंपाउंडेड हाफ ईयरली है ये, कंपाउंडेड हाफ ईयरली। तो हम क्या करेंगे, टाइम को चेंज कर देंगे। एन की वैल्यू जो लेंगे हम 3 ईयर लेंगे। जो टाइम है ना, उसको हम क्या कर लेंगे, डबल कर देंगे, यानी कि 1.5, यानी कि 1.5 है ये। ठीक है, 1.5 का हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 हो जाएगा। रेट को हम हाफ कर देंगे, यानी कि आर को मैंने 4% लिख दिया, क्योंकि आर वो वैल्यू लिखी जो हम फार्मूले में यूज कर रहे हैं, वो चेंज हो गई। जो गिवन वैल्यूज थी उनको हमने चेंज कर दिया। ठीक है, टाइम जो ड्यूरेशन था 1.5 ईयर का 3 ईयर हो गया। ठीक है, 3 ईयर तो नहीं हुआ, ठीक है ना, 3 टाइम्स हो गया। मतलब हमें 3 टाइम्स कैलकुलेट करना है रेट, क्योंकि 6 मंथ की रेट निकालना है, तो 6 मंथ की रेट 4% हुई है ना। 4% जो रेट है वो 6 मंथ की है, पूरे ईयर की रेट तो वही 8% है। क्योंकि हमने उसको कंपाउंडेड हार्डली करा है, तो एन और आर की वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो मैंने इसको यहाँ पे कैपिटल लेटर में इसलिए लिखा ताकि आप दोनों को डिफ्रेंशिएट कर पाओ कि यहाँ, या चाहे आप कैपिटल एन लिख लो, है ना, क्योंकि एन से कभी कंफ्यूजन ना हो जाए। यहाँ मैं कैपिटल में लिख रहा हूँ। ठीक है, कैपिटल एन की वैल्यू ये है तो स्मॉल एन की वैल्यू ये हो जाएगी। फॉर्मूले में हमने स्मॉल एन और आर की वैल्यू पुट करनी है, बस ये अपना ध्यान रखना। तो यहाँ पर अमाउंट हो जाएगा आपका ए इज इक्वल टू 1,56,250 1 प्लस आर की जगह 4 लेना है आपको, और यहाँ पर 3 लेना है। तो 1,6156,250 इसको डिवाइड कर सकते हैं, यानी कि 26/25, 26 इंटू डिवाइडेड बाई 25 इंटू 26/25। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए। कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी है ना, कैलकुलेशन आप खुद आप आराम से कर सकते हो। बहुत सारी टर्म कैंसिल हो जाएंगी। कैलकुलेशन करने के बाद जो आपका अमाउंट आएगा वो, उसको अगर आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है तो ए माइनस सी कर लेंगे। ठीक है, फिर इनको हम माइनस कर लेंगे जो भी आपकी वैल्यू है। तो इस तरीके से आपको इसको सॉल्व करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में जो थर्ड पार्ट दिया हुआ है उसमें कंपाउंडेड क्वार्टरली है। उसमें जो ड्यूरेशन दी हुई है वो ड्यूरेशन थोड़ी सी चेंज है। अमाउंट जो है, देखो यहाँ पर प्रिंसिपल जो दिया हुआ है
वो है आपका 3 to 5, 1 लाख है। और टाइम जो है, जो एन की वैल्यू है, कैपिटल एन लिख रहा हूँ मैं इसको, कैपिटल एन की वैल्यू 9 मंथ है। 9 मंथ को हम क्या लिख सकते हैं, 3/4 ईयर लिख सकते हैं, है ना। 3/4 पूरा ईयर नहीं हुआ। टोटल मंथ कितने होते हैं, 12 होते हैं। या तो इसको ईयर में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 3 9, 3 4 12, यानी कि 3/4 हो गया। जो एन की वैल्यू है वो 3/4 हो गई। और जो इंटरेस्ट की रेट जो दी हुई है वो 4% पर एनम है, यानी कि रेट जो है, कैपिटल आर जो है वो 4% है। तो मैंने आपको बताया, अब हमें क्या करना है, कंपाउंडेड क्वार्टरली करना है, कंपाउंडेड क्वार्टरली। तो कंपाउंडेड क्वार्टरली करेंगे तो प्रिंसिपल तो यही रहेगा आपका, है ना। एन की वैल्यू चेंज हो जाएगी। एन की वैल्यू मैंने बताया कि 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 4 टाइम्स कर लेंगे, तो एन कितना हो गया, 3 हो गया। जो रेट है हम 4 से डिवाइड कर लेंगे, रेट कितनी हो गई, 1 हो गई। बस इसको आपको सिंप्लीफाई करना है। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए आपको बस सीधा सीधा फार्मूला पुट कर देंगे। ये तो बड़ी कैलकुलेशन की वजह से मैंने आपको छोड़ दिया, इसमें टाइम ज़्यादा लग जाएगा। आप खुद सॉल्व कर सकते हो, कोई इसमें मुश्किल बात नहीं है, मल्टीप्लाई करना है। अब देखो यहाँ पर हमने जो फार्मूला यूज करना है, यही फार्मूला यही है। बस सी की वैल्यू कितनी है आपकी, 1 लाख है। 1 प्लस आर, आर की वैल्यू कितनी है, 1। और एन की वैल्यू कितनी है, वो 3 है। एन की वैल्यू हमने कैलकुलेट की 3। क्वार्टरली कंपाउंडेड होगा तो हम जो टाइम है उसको 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। 3/4 को 4 से मल्टीप्लाई करा, 3 हो गया। जो रेट है वो 4 से हम डिवाइड कर लेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 100। यहाँ पर आपके डिवाइड करेंगे तो 101 डिवाइडेड बाई 100, 3 बार मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। इसकी भी मल्टीप्लिकेशन काफ़ी बड़ी हो जाएगी, ठीक है, लेकिन काफ़ी सारे जीरो कैंसिल हो रहे हैं। आप 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 जीरो तो कैंसिल हो गए। अब इनकी आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, किसकी, जो 3 101 है, इनकी मल्टीप्लाई करके जो भी आंसर आएगा, ठीक है, उसको लिख लेना। तो इंटरेस्ट निकाला है तो ए माइनस पी कर लेना, बस ये आपका आंसर है। तो पूरी ही एक्सरसाइज में आपको यही काम करना है, ठीक है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि क्वार्टरली कंपाउंडेड है या क्वार्टरली कंपाउंडेड है या हाफली कंपाउंडेड है या ईयरली कंपाउंडेड है। ईयरली कंपाउंडेड है तो टाइम जो दिया हुआ है और जो परसेंटेज दी हुई है रेट ऑफ इंटरेस्ट की वो सेम रहेगी, ठीक है, अदरवाइज हमें चेंज करना होगा। देखो अब कोई अलग क्वेश्चन आता है तो मैं उसको बताऊंगा, अदरवाइज सेम इसी तरह क्वेश्चन आएंगे तो वो आपको खुद करने हैं, ठीक है। Find the difference between the simple interest and the compound interest on rupees 2,500 for 2 years at 4% per annum. Compound interest being repaid semi-annually. ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट जो निकाला है सेमी एनुअली का मतलब हाफ ईयरली निकाला, तो हाफ ईयरली जो है आप निकाल लेंगे 2 इयर्स का, ठीक है। और फिर सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है, PRT/100। उसमें टाइम 2 इयर्स ले लेंगे और रेट आपकी 4% ले लेंगे। तो दोनों में डिफरेंस निकालना है, तो दोनों में जो कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा, पहले तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना ए माइनस पी करके। कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के बाद जब सिंपल इंटरेस्ट निकालोगे तो उसका फॉर्मूला क्या है, PRT/100, जो हमने पिछली एक्सरसाइज में हमने निकाला था, जो पहली पिछली क्लास में भी निकाल चुके हो सिंपल इंटरेस्ट, तो वैसे हमने करना है। फिर दोनों का डिफरेंस बताना है, कितना डिफरेंस आ रहा है। चलिए कोई कंफ्यूजन है तो मैं ऐसे करके बता देता हूँ।
क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रिंसिपल है आपका 2500 और एन की वैल्यू जो है 2 ईयर दी हुई है, कैपिटल एन की, कैपिटल आर की 4, सेमी एनुअली है। सेमी एनुअली का मतलब है हाफ ईयरली, तो कंपाउंडेड हाफ ईयरली है ये। तो यहाँ पर क्या होगा, आपका जो टाइम है वो चेंज हो जाएगा। एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी, रेट की वैल्यू 2 हो जाएगी। तो हम अमाउंट निकालेंगे उसका 2500 1 प्लस 2/100 3 पावर 4, इसे डिवाइड कर लिया हमने 50 आ गया। 2500 51/50 4 टाइम्स होगा क्योंकि पावर इज 4। ठीक है, यहाँ 2 जीरो हम कैंसिल कर सकते हैं और 5 5 जा 25, ये भी कैंसिल हो गया। अब इनकी मल्टीप्लाई करनी होगी, जो मल्टीप्लाई करके आएगा वो आपका अमाउंट होगा। जब अमाउंट हमें पता चल जाएगा फिर हम इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेंगे ए माइनस सी करके। ठीक है, ये जो वैल्यू आएगी, ठीक है, ये आपका इंटरेस्ट है, ये कंपाउंडेड इंटरेस्ट है। अब हमें सिंपल इंटरेस्ट भी निकालना है इसका, तो सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे तो सिंपल इंटरेस्ट में तो कोई दिक्कत नहीं है, तो इसके लिए लेंगे 2500, आर भी लेंगे, आर की वैल्यू हम इससे 4 ही लेंगे, टाइम जो लेंगे वो 2 ईयर भी लेंगे अपॉन 100, यानी कि 200 रुपीज। जो सिंपल इंटरेस्ट आ रहा है वो 200 रुपीज आ रहा है। अब ये 51 को 4 बार मल्टीप्लाई करना है, फिर 50 से डिवाइड करना है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट जो आएगा वो 200 से जो है ज्यादा आएगा। तो उनका डिफरेंस बताना है आपको कितना आएगा, ये आप कैलकुलेशन खुद कर लें। तो ये जो मेथड है क्वेश्चन नंबर 2 का, ठीक है, लगभग मैं समझता हूँ कि सभी टाइप के मेथड आपके सामने आ चुके हैं। फिर ये नेक्स्ट क्वेश्चन और करते हैं। फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन लिखते हैं फॉर 3 ईयर, द रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड ईयर आर रेस्पेक्टिवली। अच्छा, रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज हो रहा है तो कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। आप क्या करेंगे उस स्थिति में, ठीक है, अमाउंट निकालने के लिए क्वेश्चन नंबर 3, तो थर्ड में जो है अमाउंट निकालने के लिए जो प्रिंसिपल दिया हुआ है वो 3125। रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज हो रहा है, पहले साल जो है 4% है, तो यहाँ पर आप 4/100 ले लें। ठीक है, एक साल के लिए रेट है ये, दूसरे साल के लिए रेट अलग चेंज हो जाता है, 5% हो जाता है, तो 5/100 ले लें। टू दी पावर एन नहीं ले रहे, 1 ही है क्योंकि एन की वैल्यू यहाँ पे थर्ड ईयर के लिए चेंज हो जाता है, 6% हो जाता है। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, इन सबको सिंप्लीफाई करना। तो सिंप्लीफाई करना आपको आता ही है, कोई दिक्कत नहीं, जो भी सिंप्लीफाई करके आएगा वो आपका अमाउंट हो जाएगा। इस तरीके से हमें इसे सॉल्व कर लेंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 4 है, द कमला बोरोड 26,400 from a bank to buy a scooter at the rate of 15% per annum, compounded at yearly. What amount will she has to pay at the end of 2 years and 4 months? तो 2 ईयर है और फिर 4 मंथ्स है। चलिए इसको भी बता देते हैं। देखिए यहाँ पर जो है प्रिंसिपल जो दिया हुआ है 26,500, 400, 26,400, और इसकी जो रेट है वो 15% है।
और जो ड्यूरेशन है वो 2 years 4 months है। तो 2 years तो पूरे हैं एंड 4 months है। तो इसमें आपको क्या करना है, जब अमाउंट आप निकालेंगे 26,400, 1 + 2 years तो कंप्लीट है, तो 2 कंप्लीट है तो इनमें कोई दिक्कत नहीं है, इसका तो आप 2 years का अलग से हमने निकाल लिया। बात आती है 4 months की। 4 months क्योंकि बहुत छोटा ड्यूरेशन है, तो 4 months के लिए हम अलग से निकाल लेंगे, इसके साथ मल्टीप्लाई करके 1 लेकिन 4 months जो है कितना है 12 का 1/3 पार्ट है, तो रेट भी हमें फिर 1/3 ही लेनी पड़ेगी। जैसे क्वार्टरली कंपाउंडेड में करते थे ना, 4 से 4/4 ले लेते थे, तो क्योंकि जो टाइम होता था वो 1/4 होता था, इसलिए हम रेट भी 1/4 को ले लेते थे। लेकिन यहाँ पर 1/3 है तो रेट जो है 1/3 ले लेंगे, यानी कि 3 ले लेंगे। ठीक है, 3 से डिवाइड करेंगे तो 5 ले लेंगे, कितना हो जाएगा 5/100। ठीक है, अब ये हमारे हिसाब से हो गया, क्योंकि इसको हमने जो है उसमें कन्वर्ट कर लिया 4 months के हिसाब से। बस इसको सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई करके जो आंसर आएगा, जो गिवन कंडीशन है वो इसी के अकॉर्डिंग आ जाएगा। ठीक है, 2 years और 4 months, इसको आप सिंप्लीफाई कर लेंगे। फिर है आपका अनिल बोरोड 18,000 फ्रॉम राकेश एट 8% per annum simple interest for 2 years. If the Anil had borrowed the sum at 8% per annum compound interest, what extra amount would have he has to pay? तो इन्होंने डिफरेंस पूछा है आपको आपसे कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड डिफरेंस में डिफरेंस क्या है। ठीक है, उसने अगर सिंपल इंटरेस्ट पे लिया है, अगर कंपाउंड इंटरेस्ट पे लिया होता तो उसे क्या इतना अमाउंट एक्स्ट्रा पे करना होता है। इसका मतलब आपको कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में डिफरेंस फाइंड आउट करना है बस। तो पहले आप कैलकुलेट करके पहले अमाउंट निकालोगे, फिर कंपाउंड इंटरेस्ट निकालोगे, फिर सिंपल इंटरेस्ट निकालोगे, फिर उनका डिफरेंस कैलकुलेट करना है। Come to the next question. Rohit borrows 86,000 from Arun for 2 years at 5% per annum simple interest. He immediately lends out his money to us at 5% compound interest compounded annually for the same period. मतलब एक पर्सन ने क्या किया, किसी पर्सन से लेके, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट पर कंपाउंड इंटरेस्ट पर दे दिए, तो उसे कितना फायदा हो जाएगा ये पूछा गया। मतलब वही है कि आपको कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में कितना डिफरेंस है, यही चीज कैलकुलेट करनी है ना। सिंपल इंटरेस्ट हम अलग निकाल लेंगे और कंपाउंड इंटरेस्ट अलग निकाल लेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 7 है मुकेश बोरोड 75,000 फ्रॉम ए बैंक इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% पर एनम फाइंड द अमाउंट ही वुड हैव be paying after 1.5 years if the interest is compounded annually, compounded half yearly। तो compounded annually है, ठीक है, और compounded half yearly है। तो दो तरीके से हमें इसको कैलकुलेट करना है। तो दोनों तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। कंपाउंडेड, अगर हम इसको कंपाउंडेड एनुअली करते हैं तो क्या होगा, तो प्रिंसिपल जो दिया हुआ है वो है आपका 75,000। If the rate of interest 12% और फाइंड द अमाउंट ही हैज टू पे आफ्टर 1.5 year, एंड जो है वो 1.5 year। इफ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली, कंपाउंडेड एनुअली है तो अमाउंट जो निकालोगे आप यही फॉर्मूला यूज करोगे, 75,000 1 + R 1200। ठीक है, 1.5 year है तो 1 year का तो ये हो गया, हाफ ईयर का हम अलग निकाल लेंगे। हाफ ईयर का मतलब रेट को हम आधा कर देंगे बस। ठीक है, क्योंकि पावर हम फ्रैक्शन में नहीं सोल्व कर सकते, तो इसलिए हमने 1 year का कंप्लीट अलग कर लिया। जो हाफ ईयर का निकालना था उसमें रेट हमने हाथ ही कर दिया। ये तो हुआ कंपाउंडेड एनुअली। अगर हम कंपाउंडेड हाफ ईयरली करते हैं
तो क्या डिफरेंस होगा वो मैं बता रहा हूँ। तो उसमें जो हम अमाउंट निकालेंगे उसमें हम क्या करेंगे, 75,000 ये है, ये हम पहले कर चुके हैं, कोई खास चीज नहीं है। हम क्या करेंगे, जो आपके एन की वैल्यू है उसको डबल कर देंगे, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, टाइम जो रेट है उसको हाफ कर देंगे बस। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया, 3 हो गया। तो दोनों को हम कैलकुलेट करके बताएंगे कि क्या डिफरेंस आ रहा है दोनों में जो है अमाउंट में कितना डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, ये कंपाउंडेड हाइफेली ये थोड़ा ज्यादा आएगा, ये कंपाउंडेड एनुअली। बस किसी की कैलकुलेशन आप खुद कर लेना, कैलकुलेशन करने के बाद आपको पता चल जाएगा कि थोड़ा बहुत मामूली सा फर्क आएगा। ठीक है, वो फर्क क्यों आएगा, क्योंकि ये हाफली कंपाउंडेड है, वो ईयरली कंपाउंडेड है। क्वार्टरली कंपाउंडेड होगा तो वो और थोड़ा ज्यादा आएगा। फिर बड़ा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 8 है, आर्यन इन्वेस्टेड 10,000 इन ए कंपनी, he would be paid interest at 7% per annum compounded annually. Find the amount received by him at the end of 2 years at the interest for the third year. तो 2 ईयर का निकालना है, 2 ईयर का निकालना है और 3 ईयर का निकालना है आपको। ये सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आपको ये है ना कंपाउंडेड एनुअली है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, एज इट इज रखना है। 2 क्वेश्चन हो गए, यानी कि 2 या एन की वैल्यू एक बार 2 लेनी है और एक बार आपको 3 लेनी है। क्वेश्चन नंबर 9 है, फाइंड व्हाट सम ऑफ द मनी विल अमाउंट टू रुपीज इसमें एट 5% पर एनम कंपाउंडेड विद कंपाउंड इंटरेस्ट। यहाँ पर हमें क्वेश्चन थोड़ा अलग आ गया। मेरी राय ये है कि हमने काफी क्वेश्चन कर लिए हैं आपको। आप क्या काम करो, पहले आप यहाँ तक कंप्लीट करो, क्वेश्चन नंबर 1 to 8, है ना। फिर हम आगे के जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11, 12, 13, ये हम फिर बाद में करते हैं। ठीक है, इनमें क्योंकि काफी काम होमवर्क से ज्यादा बढ़ जाएगा, आप पता नहीं कितना कर पाए नहीं कर पाए। ठीक है, अब आप मेरे को अपने ये बताओ कि आपको जो चीज नहीं समझ में आई है तो मैं आपको फिर, और आर की वैल्यू क्या कर लेंगे, 1/4 टाइम्स। बस ये चीज है जो आपको 1+R/100 टू दी पावर n। पी क्या है, प्रिंसिपल है, आर रेट है और एन ये है। अगर रेट अलग अलग दी हुई है तब आपको ये फार्मूला दिए लगाना है, A = P 1+R1/100